Today we have started the artificial intelligence lab. The most important topics is to how do we use in Python in this lab, because in artificial intelligence main topic is Python. Python is a language, another language like C, Java. Okay, so Python is another language, and today we discuss how to install the Python apps in computer and how to work the Python. And in Anaconda 3 we use in this lab, and first of we download the Anaconda 3 version. Okay, and we noticed the computer which we are used how many bits. Okay, first we notice the computer, this PC, and the properties of this PC, because if we did not match the property of PC, then there is a problem in the next process. That here we used 34 bits. Okay, in this computer we used for the 64-bit operating system. Okay, this is the main point, because first we download the Anaconda apps, we look into the matter which PC we are used, and the operating system is which we used. So here we use 64-bit operating system. So when we download the Anaconda 3, anaconda.com, okay, anaconda.com, here here we get started. Okay, get started, then check out the latest, download the Anaconda installer. Download the Anaconda installer. Next we click download Anaconda installer, and here we see how there are many processes. So get started. So here we see Anaconda individual edition versions. Okay, and 64-bit. So so here we download, get started, fed, see download installer and 64-bit. Okay, so first we download the 64-bit Anaconda 3 version. So here we download previously. So next the process is install. How to install the Anaconda 3 version.
how to install the Anaconda 3 versions. So here we search Anaconda Navigator apps. Okay, so Anaconda Navigator is here. Open Anaconda navigation apps. So here we found the main items cmd.xp prop run command .cmd command .exe terminal with your current environmental for navigation activated and data load Jupyter Labs, Jupyter Notebook and fair data load and Jupyter Lab हो गया फिर Spider. Jupyter Lab or Spider is the most important part because we used this function to program Python. A program, the artificial intelligence program are used to Jupyter Notebook and Spider. And also RS software, we use RS software. Okay, so launch Jupyter Notebook and Spider, and also PyCharm Professional install. We install PyCharm Professional because a full-fledged IDE by JetBrains for both scientific and web Python development support HTML, JS, and SQL. Okay, so now we used to Jupyter Notebook. In Jupyter Notebook, how to install Jupyter Notebook. In Jupyter Notebook, we first click new and Python 3. Okay, so here open the page where we can write a program, or we first we find this Jupyter is running properly or not. So print hello world. Hello world, HELLO W, hello WORLD. Print hello world. Run hello world. So this is a most easy process to run a program, and it is a latest version. So next we calculate the two number of addition in this using Jupyter platform, and a simple Python program here we run and calculate how to run this Jupyter program. We notice, okay, Python 3 program to add two numbers. First of all, num we 1 is equal to 15. And next, num 2 to 20. Okay, and next sum is equal to adding two numbers. Okay,
First we define two numbers, num1 15 and num2 20, and next we adding two number num1 plus num2. Okay. Next, printing value. Printing value, we write down print, print, print bracket, we use semicolon. Next, sum of zero and sum of 0 and 1 is 2 dot format num1 comma num2 comma sum okay. So format, okay. So we next we run the program. So here sum of 15 and 20 is 30. Okay. अगर यहाँ पर मैंने is ये अगर कर दिया तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. तो the second program is the addition of two Python Jupyter and run the program, and here the result is coming out. Okay. Next, you calculate the three number and find out the result of the program. Use Jupyter. Okay. Yeah, अगर we use three number num and another program we write down here, adding two number provided by user input. Okay, adding two number provided by user input. Next we write number 1 is equal to input first
number, input first number, next number 2 is equal to this is the most simple way to write down a C program. Input first bracket, second bracket, close, and that slash n second number. Okay, then adding two numbers, and next user might also enter float numbers. So we add the logic, sum is equal to float 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 number one plus float number 2 okay, then display the sums and will print value in float. Display the sum, so we write down print write down print write down print and next the sum of zero and number 1 is 2, comma, format number 1, comma, number 2, comma, sum. Okay, so we run the first number, we put 50, enter. Second number we put 100, enter. The sum of 50 and 100 is 150. Okay, these are the basic program of Python, where first we print the hello world, second we print the two number of addition, where we first the number is
declare, and next we input the number and we calculate the program. Next we floating number check. We check the float number, floating number 1040, enter 2053,40. So here we also find the floating number. Okay, so the sum of 1030.40 and 2053.40 is also the sum is 3083.8. So here we calculate the floating number also. Okay. Next we calculate the BFS. Next we calculate the BFS program in using Python. Okay. Breadth first search or BFS for a graph. Breadth first travels or search for a graph is similar to breadth first travels of a tree. This method of this post, the only catch here is, unlike trees of graphs may contain cycles, so we may come to the same node again. To avoid processing a node more than once, we use a Boolean visited array. For simplicity, it is assume that or verticals. We here the example of BFS is this is a BFS tree. This is a BFS tree. Here 2 is starting point and 2 cover 0, 1 and 3. Okay, so how to write down a BFS program, and we run the shortest path of this program, and how to run a Jupyter in this program in Jupyter. And we also discuss the process we used to run the same program in using Python. Okay, in using Python, we discuss the same program. So first of all, Python in Spider, we discuss here Jupyter Notebook and the Spider both are used to run a Python program or AI program, and here we calculate the simple program of Python, and next we discuss the large program like BFS program, DFS program, heuristic search, 8 puzzle search, and also so many programs we discuss in later. And first we calculate the basic program in using Jupyter, using Jupyter Notebook, and next we use to Spider. Okay, to Spider to calculate the program. To Spider use, we first launch the Spider. Here we previously launched. So we calculate the basic. First we print hello world, print
hello world, HELLO, hello world. Okay, so we run hello world run file. So here we run, write the program and run. Then the output comes in this place. Okay. So first we print hello world program. So we run this program and the output is hello world. Next we add. Next program is add two numbers. Okay, and find out the result. So how Jupyter's works properly, spider work properly or not. So next, we add two simple number in using Python language, and the platform is spider. So first of all, Python program to add two numbers. We in Jupyter platform. First number is equal to 70. Okay, and next number 1 is equal to 70. Next number 2 is equal to 80. Okay, next adding two numbers, so we use sum is equal to number 1 plus number 2. Okay, next printing the value of two numbers, we use print bracket use sum of same process. The platform is different. 0 and 1 is 2. Okay. Dot format num 1 comma number 2 comma sum okay. So here we run this program. So we found the output of this number is, so here we gap and we run. So sum of 70 and 80 is 150. Okay, and here we also write down the program to addition of two number, and user put their input. Okay,
addition of two number provided by user input. In Python 3 program, we use spider. Python 3 program, addition of two numbers. First, we note down शुभम कुमार शर्मा। यस सर। देखो क्लास तो तुम लोग, बात बोल रहा हूँ, मन धीरे से सुनना। क्लास तो तुम लोग काम कर रहे हो, ठीक है, कैंपसिंग का चाफ है वो ठीक है, लेकिन देखो एआई में पाइथन एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये बात और जो दोस्त है उन लोगों को बोल देना, जो पाइथन एक लैंग्वेज होता है, जैसे तुम लोग सी, जावा जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है और ठीक है, तो सी जावा जैसे तुम लोग सीखे हो, वो सी जावा तो अब काम में लगता है तुम लोगों का, सही है ना? हेलो। तो सी जावा जैसा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, उस तरीका का पाइथन एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो इन फ्यूचर तुम लोग अगर कोई कंपनी पे इंटरव्यू देने जाओगे और कहाँ और जो तुम्हारा इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएगा वो पाइथन से जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर पाइथन का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज पता आना चाहिए, ठीक है। तो पाइथन में हम लोग एनाकोंडा यूज करते हैं, एनाकोंडा डाउनलोड करके हम लोग पाइथन यूज करते हैं। पाइथन में जो प्रोग्राम होता है वो बहुत इजी होता है। स्क्रीन पर देखो, एक प्रोग्राम में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये एक प्रोग्राम, ओके। देखो मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। अगर तुम सी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे तो कितना तुमको लिखना पड़ेगा? हाँ यस सर, वहाँ पे बहुत लाइंस लिखने पड़ेंगे। लेकिन पाइथन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। हाँ यस सर। देखो तुम अगर सी प्रोग्रामिंग में दो नंबर का एडिशन जब करते थे, उसमें कितना वहां पर लिखना पड़ता था? वॉइड मैन, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब लिखना पड़ता था, यस सर। ठीक है ना? यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने एक नंबर यूज किया, नंबर 1, नंबर 2, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रिंट कर दिया, सम ऑफ 0 एंड 1, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 मतलब ये जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको मैंने 0 से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 एंड 2 का जो लिया, वहां पर देखो यहाँ पर लिया सम ऑफ 0 एंड 1 इज 2। सो यहाँ पर 0 अगर इनपुट एंड आउटपुट, दो इनपुट 0 एंड 1 में हम लोग ले लिया, तो उसका अगर 2 वैल्यू आ जाएगा, तो क्या आ गया, यहाँ फॉर्मेट में मैंने क्या लिख दिया, नंबर 1, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और शाम को मैंने डिनोट कर दिया। देखो यहाँ पर देखो, मैं इस प्रोग्राम को फिर एक बार रन करके दिखाता हूं। देखो ये तो रन, समझो ये प्रोग्राम है, रन यहाँ से हो जाता है, ठीक है। रन के लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से अगर रन कर दोगे तो देखो यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 15 के प्लेस में मैं 100 कर दे रहा हूँ, और यहाँ 20 के प्लेस में 250 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर रन कर दूंगा तो देखो क्या आ गया, 100 एंड 250, 350, ठीक है ना? यस। तो इस तरीके के देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, तुम लोग तो क्लास में ज्वाइन नहीं किए थे, इसलिए मैं क्या डिस्कस करूं। ये एक प्रोग्राम है, देखो यहाँ पर मैं इनपुट पहले से ही ले लिया हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इनपुट बाद में लूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नंबर 1 इनपुट फर्स्ट नंबर, नंबर 2 इनपुट /n सेकेंड नंबर, ओके। फिर सम ऑफ, यहाँ पर मैंने फ्लोट क्यू यूज किया, अगर फ्लोट में यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं पॉइंट में भी कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्लोट यूज कर लिया हूँ, सम ऑफ फ्लोट नंबर 1 प्लस फ्लोट नंबर 2
print the sum of 0 and 1 is 2, format number 1, number 2 and sum. देखो यहाँ पर ये तो मैंने आउटपुट ले लिया, ये अगर रन करूंगा, देखो रन किया तो इसमें रन 720.33 मैं जो भी ले सकता हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 1042.59, ओके। देखो इसका जो सम है वो आ गया, देखो ये सही है, ठीक है। यस तो सी में और जावा में जो प्रोग्राम तुम लोगों को बहुत सारा लिखना पड़ता था, बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारा एरर आता था, बहुत सारा प्रोसेस होता था वहां पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इजी वे में यहाँ पर हो रहा है। तो ये करने के लिए पहले तुम लोगों को क्या करना पड़, देखो टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो जो लिंक है उसमें रीजॉइन कर लेना, ठीक है। ओके मैं कैसे एनाकोंडा को इंस्टॉल यहाँ पर होगा, ठीक है, और पाइथन में तुम कैसे प्रोग्राम लिख पाओगे वो मैं बोल दूंगा। प्रोग्राम तो बाद में करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो आना चाहिए ना। अगर तुमको मैंने बोला पाइथन में तुम एक एडिशन करके मेरे को दो, तुम दे पाओगे? वो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाइथन पहले यूज किए हो। यस सर, बट बेसिक सीखे सर। तो सर इससे पहले डेटा साइंस हुआ था, तो सर उसमें मतलब सीखे थे हम लोग। ओ तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा साइंस में थोड़ा पाइथन यूज होता है। तो इस पाइथन प्रोसेस में जो बीएफएस है, जो डीएफएस है, जो 8 पाजल प्रोग्राम है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे वो सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स में एक क्लास खत्म हो जाएगा। फिर तुम लोग वो लिंक से तुम फिर से ऐड हो जाना। फिर मैं बीएफएस का एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। उस बीएफएस प्रोग्राम इस देखो पाइथन में यहाँ पर हम लोग जो एनाकोंडा का जो वर्जन है, यहाँ पर देखो एनाकोंडा 3 यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इंस्टॉल करने के बाद ये सेम प्रोग्राम हम लोग किसमें कर सकते हैं, जो जुपिटर नोटबुक है और जो स्पाइडर है। तुम लोग कौन सा यूज किए थे जब डेटा साइंस का प्रोग्राम कर रहे थे, मालूम है? सर हम तो ये कोलैब यूज किए थे सर, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब। तो हाँ सर, कुछ लोग यहाँ पर देखो, स्पाइडर भी यूज किए थे, कुछ लोग जुपिटर भी, कुछ लोग पाइथन भी किए थे। हाँ तो यहाँ पर सब चीज से प्रोग्राम रन होता है, आर स्टूडियो से भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन जो इजी वे है तो जुपिटर नोटबुक है और स्पाइडर है, ठीक है। ये दोनों से ये प्रोग्राम बहुत इजी से प्रोग्राम रन हो जाता है, ओके। तो ये जो प्रोग्राम है इसके बाद मैं जुपिटर में ही मैं रन करके दिखाऊंगा। जुपिटर में एक यहाँ पर मैंने बोला है, एक ये है, एक ग्राफ है बीएफएस में। इस बीएफएस में जो ग्राफ है, इस ग्राफ में बीएफएस का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा, वो कहाँ कहाँ पर रन करेगा, वो एक प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा, समझो। देखो अगर पाइथन जुपिटर ये थोड़ा सा एडवांस रहोगे तो जो जो कैंपसिंग होगा, कैंपसिंग में तुम्हारा चांस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब जो होता है उसमें डेटा साइंस, पाइथन, मशीन लर्निंग, इस सारे चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज है ये आना चाहिए। तो तुम लोग इंस्टॉल कर पाओगे खुद, जो पाइथन का जो है वो अपने कंप्यूटर पे खुद इंस्टॉल कर पाओगे? कैसे इंस्टॉल करता है और कैसे यूज होता है, और डेटा साइंस क्लास में तुम लोग किए हो पहले? सर हम तो मतलब ऑनलाइन ही करते थे, वहां से भी इजीली हो जाता है कोलैब से सर। ठीक है, ऑनलाइन कोलैब से तुम लोग इजीली करते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तुम खुद का कोई प्रोग्राम करोगे, ठीक है, और खुद कुछ प्रैक्टिस करोगे, तब तो ऑनलाइन से नहीं करोगे। और जो समझो कोई कंपनी के लिए और खुद का कोई डिजाइन कर रहे हो, तब तो हाँ ऑनलाइन सर। से नहीं करोगे। तो हाँ सर। तब तुम्हारा तो खुद का एक होना चाहिए। तो हाँ सर, इसलिए वो पढ़ना वाला एक बार बता दीजिए, एनाकोंडा वाला। सर नोटपैड में कर सकते इसलिए हैं ना सर? हाँ बोलो। नोटपैड में तो कर सकते हैं ना? नोट पर पे
कर सकते हो, लेकिन तुम इजीएस्ट वे तुम लोग ट्राई करो। इजीएस्ट वे में तुम लोग कैसे ट्राई करोगे? तो इजीएस्ट वे में पहले तुम anaconda.com में समझो, गूगल में जाओ, यहाँ पर हाँ सर। गूगल बट से सर पहले सर हेलो सर, जब हाँ हम बोलो। नोटपैड में कर रहे हैं ना, तो बहुत सारा हम प्रोग्रामिंग करते थे नोटपैड में यूजिंग पाइथन। तो जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली नोटपैड में करने से होता है क्या, हम लोग का ज्यादा प्रैक्टिस होता है और उससे हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी सही इंक्रीज हो जाता है उससे। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन द प्रोसेस वेयर व्हिच प्रोसेस इज वी यूज्ड इन एवरीवेयर, ठीक है। जो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग लाइसेंस यूज करके, और ये प्रोसेस हम लोग जो कंपनी पर तुम जॉब करोगे और खुद का कोई काम करोगे, या तो सर। इस प्रोसेस में करना, क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट वे है। हम लोग एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम लोग कर लिए, लेकिन वो तो प्रोसेस सही नहीं है वो, क्योंकि तुम लोग क्लास में और कॉलेज में तुम लोग नहीं आ पा रहे हो, इसलिए वो प्रोसेस तुमको बोला था जे ऐसा कर लो। वो नोटपैड पे तुम प्रोग्राम लिख लो, नोटपैड का प्रोग्राम कॉपी करके तुम ऑनलाइन पे डाल दो, फिर ऑनलाइन पे डालने से वो रन हो जाएगा, यही है ना? एक्चुअली नहीं सर, नोटपैड में भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, उससे पी वाई से ऐड करते हैं एक्सटेंशन से, वे तो सीएमडी में तो रन ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तो तुम जो प्रोसेस है वो सीख लो। समझो तुम पाइथन कैसे इंस्टॉल करो, तुम एनाकोंडा पहले इंस्टॉल करो। हाँ सर, एनाकोंडा भी हम यूज किए हैं, बहुत पहले यूज किए थे, बट हाँ मैं प्रोसेस बोल दे रहा हूँ, कैसे तुम लोग डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना? हाँ सर। वो देख लो, क्योंकि देखो अगर तुम कोई कंपनी पे गए और कहीं पर इंटरव्यू दिए, वहां पर अगर प्रोसेस तुमको पूछा कि कैसे हाउ टू इंस्टॉल ए पाइथन और ए एनाकोंडा एंड हाँ उसका हाँ, ये प्रोसेस क्या तो है, हाँ सर। ठीक है, वो भी तुम लोगों को इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो, एनाकोंडा डाउनलोड मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया गूगल पे, तो यहाँ पर क्या आया, इंडिविजुअल एडिशन एनाकोंडा। तो ऊपर में चेक कर लेना, ठीक है। ऊपर में क्या चेक करोगे, ये anaconda.com से ये है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो anaconda.com से है, तो इसके मतलब क्या है, ये हम लोग सही चीज से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल एडिशन एनाकोंडा तुम क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर ए आ गया, ओके। ए आने के बाद देखो यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर लेना, लेकिन इसके पहले कौन सा वर्जन हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं और कौन सा वर्जन हमारा पीसी में काम करेगा, वो तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देखो, ये तो विंडोज में है, तो विंडोज में 64 बिट का है या नहीं है, वो हम लोग पहले देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सर्च करूंगा, यहाँ पर जो मेरा पीसी है उसका प्रॉपर्टी सर्च करूंगा, उसका प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। देखो यहाँ का सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग 64 सिस्टम। बिट। तो यहाँ पर हम लोग जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 64 बिट। देखो यहाँ पर तो 64 बिट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अगर यहाँ पर 64 बिट नहीं आया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर तीनों चीज रहता है, एक 64 बिट, एक 32 बिट्स, और ये के लिए उबंटू के लिए एक अलग सा होता है, और वो आईओएस सिस्टम के लिए एक अलग होता है, ठीक है। आईओएस मतलब जो आईफोन यूज करते हैं, ठीक है, और जो लिनक्स यूज करते हैं उसके लिए ये अलग होता है। फिर ये डाउनलोड कर लेना, मेरे पास ये डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। फिर इंस्टॉलिंग में क्या करना, इंस्टॉल अगर ओपन हो जाए तो वहां पर लाइसेंस को ओके कर देना, फिर सिर्फ माई कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना। अगर तुम लोग कोई इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछना, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद वो काम नहीं करेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, समझो ये इंस्टॉल करने के बाद एनाकोंडा नेविगेटर, यहाँ पर मैंने सर्च किया तो ये भी आ जाएगा, देखो एनाकोंडा नेविगेटर ये आ रहा है एप्स, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन करने से क्या होगा, देखो ये पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पेज में जो मेन चीज यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वो जुपिटर नोटबुक, ओके।
एंड स्पाइडर। एंड जिसको आर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए वो आर सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो देखो आर सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पर हम लोग नोटबुक एंड जुपिटर यूज करेंगे, और ये जो पाइथन प्रोफेशनल है इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल करने से यहाँ पर नोटबुक ओपन होगा, इस तरीका का नोटबुक ओपन हो जाएगा। देखो ये नोटबुक है, तो इसमें लोकल होस्ट आएगा 88808890, जो भी लोकल होस्ट आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोग्राम हम लिखेंगे और यहीं से ही हम लोग रन कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जुपिटर में क्या आएगा, जुपिटर में यहाँ पर देखो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो था उसको मैंने कैसे काम कर रहा है, देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, 2 नंबर का जो एडिशन है वो भी कर दिया। फिर हम लोग इनपुट लेंगे। देखो प्रोग्राम तो तुम लोग पहले से ही जानते हो, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम लोग सी प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम और सारा प्रोग्राम तुम लोग यहाँ पर कर लिए हो। तो उस प्रोग्राम तो तुम लोग जानते ही हो, वो हम लोग पाइथन में कैसे करेंगे। पाइथन में मैं और 2 या 3 प्रोग्राम, यहाँ पर मैं बेस्ट सर्च का एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम में। बेस्ट सर्च में कैसे प्रोग्राम रन करता है, बेस्ट सर्च का जो मैंने एक यहाँ पर एक ट्री लिया हूँ, यहाँ से के स्टार्ट से सिंबल से स्टार्ट होके 1 0 और 3 तक जाता है। फिर इसमें कौन सा वे में इसका पाथ शॉर्टेस्ट होगा वो मैं यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग थ्रू मैं कराऊंगा। ठीक है, नहीं ये जो क्लास के बाद 40 मिनट्स के बाद क्लास ऑफ हो जाएगा, तो इसमें मैं बोलूंगा ब्रेकफास्ट सर्च में कैसे प्रोग्राम हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस है। तो सिंपली इन स्पाइडर यहाँ भी क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पर मैं स्पाइडर में एक प्रोग्राम में दिखा रहा हूं, जो प्रोग्राम में क्या है, इनपुट हम लोग खुद यहाँ पर यूज करूंगा। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, नंबर सेम होगा, नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट देखो इनपुट के अंदर मैं लूंगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ओके। फिर नंबर 2 इनपुट स्लैश इनपुट स्लैश n, सेकेंड नंबर फिर addition of 2 number and user might also enter float number। ओके, सो मैं यहाँ पर फ्लोट नंबर के लिए भी कर रहा हूँ। फिर sum is equal to float
number 1 plus float number 2. Here display the sum. Next, display the sum and we'll print value in float. Okay, so we write down print the sum of 0 and 1 is 2. Format number 1 dot number 2 कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा होगा, डॉट नहीं होगा, कॉमा सम देखो। फिर मैं रन करूंगा, यहाँ पर रन हो गया। फर्स्ट नंबर यहाँ पर मैं फ्लोट पे भी ले सकता हूँ 1050.37। सेकेंड नंबर 2017,54। यहाँ पर मिसिंग हो गया शायद, वैल्यू एरर, फील्ड नंबर अनएक्सपेक्टेड। ओके, जीरो एंड वन is 2. Okay, run. First number 1050.30. Second number 2017.54. अनएक्सपेक्टेड, फील्ड अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर एक मिसिंग है शायद, प्रिंट सम ऑफ 0 and 1 is 2 हो गया। डॉट फॉर्मेट नंबर 1 नंबर 2 सम।